کیا آپ نے کبھی سوچا کہ طاقت، دولت اور اختیار ہونے کے باوجود انسان بے سکون کیوں رہتا ہے؟ اور اگر آپ کو صرف 3 سوالوں کے جواب مل جائیں تو کیا آپ اپنی پوری زندگی بدل سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جسے ان 3 سوالوں نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، دور دراز پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جسے نور آباد کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ بے حد طاقتور تھا۔ اس کا نام بادشاہ سکندر شاہ تھا۔ اس کے پاس بے شمار فوجیں تھیں، خزانے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے اور اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر ایک عجیب بات تھی، اتنی طاقت اور دولت کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک عجیب بے چینی رہتی تھی۔ رات کے وقت جب پورا محل خاموش ہو جاتا اور پہرے داروں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیتیں، بادشاہ سکندر شاہ کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو تکتا رہتا۔ وہ بار بار سوچتا، آخر زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک رات چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں 3 عجیب سوال پیدا ہوئے، ایسے سوال جو اس کی پوری زندگی بدل سکتے تھے۔ بادشاہ نے خود سے کہا، اگر مجھے ان 3 سوالوں کے جواب مل جائیں تو میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ وہ 3 سوال یہ تھے: سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ سب سے اہم انسان کون ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ بادشاہ نے سوچا، اگر مجھے ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو میں اپنی سلطنت کو دنیا کی سب سے بہترین سلطنت بنا سکتا ہوں۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی بادشاہ نے دربار لگانے کا حکم دیا۔ پورے ملک میں اعلان کروا دیا گیا، جو شخص بادشاہ کے 3 سوالوں کا درست جواب دے گا اسے سونے کے 1000 سکے اور خاص عزت دی جائے گی۔ یہ خبر جنگلوں، شہروں اور گاؤں تک پھیل گئی۔ علماء، حکیم، فلسفی، سپاہی اور تاجر سب محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دربار میں سینکڑوں لوگ جمع تھے۔ بادشاہ اپنے سنہری تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں تم سب سے 3 سوال پوچھوں گا۔ جو شخص صحیح جواب دے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنے سوالات دہرا دیے۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سب لوگ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ سب سے پہلے ایک بزرگ عالم آگے بڑھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، سب سے اہم وقت مستقبل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ آنے والے وقت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے سر ہلایا مگر وہ مطمئن نہ ہوا۔ پھر ایک وزیر آگے آیا۔ اس نے کہا، سب سے اہم انسان خود بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے فیصلوں سے پوری قوم کی تقدیر بدلتی ہے۔ بادشاہ نے پھر سر ہلایا مگر اس کے دل کو سکون نہ ملا۔ پھر ایک سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس نے کہا، سب سے اہم کام جنگ جیتنا ہوتا ہے، کیونکہ مضبوط سلطنت میں سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ دربار میں کچھ لوگوں نے تالی بجائی مگر بادشاہ کی پیشانی پر شکنیں بڑھ گئیں، کیونکہ ہر شخص کا جواب مختلف تھا۔ کوئی کہتا سب سے اہم وقت کل ہے، کوئی کہتا سب سے اہم انسان دوست ہوتا ہے، کوئی کہتا سب سے اہم کام عبادت ہے، اور کوئی کہتا سب سے اہم کام دولت کمانا ہے۔ مگر بادشاہ کو کوئی جواب پسند نہ آیا۔ اس نے غصے میں کہا، تم میں سے کوئی بھی میرے سوالوں کا درست جواب نہیں دے سکا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ شدید پریشان تھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا وزیر آہستہ سے آگے آیا۔ اس نے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ واقعی ان سوالوں کے جواب چاہتے ہیں تو آپ کو پہاڑوں میں رہنے والے ایک درویش کے پاس جانا ہوگا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کون درویش؟ وزیر نے کہا، وہ ایک بزرگ انسان ہے جو نہ دربار میں آتا ہے اور نہ لوگوں سے ملتا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت دانا ہے۔ بادشاہ نے فوراً فیصلہ کر لیا، میں خود اس درویش کے پاس جاؤں گا۔ مگر اس نے یہ سفر خفیہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ اگلی صبح وہ عام لباس پہن کر محل سے نکلا۔ صرف ایک وفادار سپاہی اس کے ساتھ تھا۔ وہ گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹی سی وادی میں پہنچے۔
वहां एक सादा सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा दरवेश जमीन खोद रहा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। बादशाह उसके पास गया और बोला, बाबा जी, मैं आपसे 3 सवाल पूछने आया हूँ। मगर दरवेश ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से जमीन खोदता रहा। बादशाह ने दोबारा कहा, बाबा जी, मेरे सवाल बहुत अहम हैं। लेकिन दरवेश फिर भी खामोश रहा। बादशाह ने देखा कि वो बहुत थक चुका है। उसने कहा, आप आराम करें, मैं खुद खुदाई कर लेता हूँ। दरवेश ने खामोशी से कुदाल उसके हाथ में दे दी। बादशाह जमीन खोदने लगा। घंटों गुजर गए मगर दरवेश ने कोई जवाब न दिया। सूरज ढलने लगा। बादशाह थक कर बैठ गया। उसने कहा, बाबा जी, अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। इसी लम्हे झाड़ियों में से एक आदमी भागता हुआ निकला। वो बुरी तरह जख्मी था और उसके पेट से खून बह रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ दरवेश की तरफ आया और जमीन पर गिर गया। बादशाह फौरन उसकी तरफ दौड़ा। उसने देखा कि जख्म बहुत गहरा है। अगर फौरन इलाज ना किया गया तो वो जिंदा नहीं बच सकेगा। बादशाह ने फौरन कपड़ा फाड़ा और जख्म पर बांध दिया। फिर उसे उठाकर झोंपड़ी के अंदर लिटा दिया। रात गहरी हो चुकी थी। बादशाह पूरी रात उस जख्मी शख्स की देखभाल करता रहा। उसे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये शख्स दरअसल उसका दुश्मन है और अगर वो मर जाता तो बादशाह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। लेकिन बादशाह को इस बात का कोई इल्म नहीं था और ना ही उसे ये मालूम था कि उसके तीनों सवालों के जवाब इसी रात मिलने वाले हैं। रात मजीद गहरी हो गई। जंगल में सिर्फ झींगर की आवाजें गूंज रही थीं। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और झोंपड़ी में एक मध्यम सा चिराग जल रहा था। बादशाह सिकंदर शाह सारी रात जागता रहा। वो बार बार जख्म पर पट्टी बांधता, पानी पिलाता और उसकी देखभाल करता। कई बार उसके दिल में ख्याल आया, मैं एक बादशाह हूँ और आज एक अजनबी की खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो जाता। कुछ देर बाद जख्मी आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसने कमजोर आवाज में कहा, पानी। बादशाह फौरन उठा और उसे पानी पिलाया। जब उसे कुछ होश आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोला, मुझे माफ कर दो। बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुमने क्या किया है? जख्मी आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचानते मगर मैं आपको जानता हूं। बादशाह चौंक गया, तुम मुझे कैसे जानते हो? आदमी ने कांपती आवाज में कहा, आप ही बादशाह सिकंदर शाह हैं। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? आदमी ने जवाब दिया, मैं आपका दुश्मन हूं। यह सुनकर बादशाह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसने आहिस्ता से पूछा, मेरा दुश्मन? आदमी ने सर हिलाया, जी, मैं आपसे बदला लेने आया था। यह सुनकर दरवेश भी खामोशी से दोनों को देखने लगा। जख्मी आदमी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। चंद साल पहले आपके सिपाहियों ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। वो बेकसूर था मगर जंग के दौरान उसे दुश्मन समझकर मार दिया गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा। बादशाह खामोशी से सुनता रहा। आदमी ने मजीद कहा, जब मुझे मालूम हुआ कि आप दरवेश से मिलने आने वाले हैं तो मैंने सोचा यही बेहतरीन मौका है। मैं झाड़ियों में छुपकर बैठ गया ताकि आपको कत्ल कर सकूं। बादशाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। आदमी ने कहा, मगर आपके सिपाहियों ने मुझे देख लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं जख्मी हो गया और भागते हुए यहां पहुंच गया। फिर उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो आपने मेरी जान बचाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आपको मारने आया था और आपने मुझे बचा लिया। वो रोने लगा। बादशाह सलामत, मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर मैं जिंदा बच गया तो जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगा। झोपड़ी में गहरी खामोशी छा गई। बादशाह सिकंदर शाह उस आदमी को देखता रहा। उसके दिल में अजीब जज्बात पैदा हो रहे थे। वो सोच रहा था, ये वही शख्स है जो मुझे कत्ल करने आया था, मगर आज मैंने इसी की जान बचाई है। चंद लम्हों बाद बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जख्मी आदमी हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, न सिर्फ माफ करता हूं बल्कि मैं तुम्हारे भाई के मामले की भी तहकीक करवाऊंगा। अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई है तो तुम्हें इंसाफ दिया जाएगा।
ये सुनकर वो आदमी बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। वो बार बार कहने लगा, आप बहुत बड़े इंसान हैं। रात गुजर गई। सुबह सूरज की रोशनी झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो रही थी। जख्मी आदमी की हालत अब बेहतर थी और वो सो रहा था। बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया जहां दरवेश बैठा था। बादशाह ने कहा, बाबा जी, मैं कल से आपके पास हूं। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे, मगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। दरवेश मुस्कुराया। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें जवाब मिल चुके हैं। बादशाह हैरान रह गया। मुझे जवाब मिल गए? कैसे? दरवेश ने कहा, अगर तुम कल मेरी मदद ना करते और जमीन ना खोदते तो वापसी पर वो आदमी तुम्हें कत्ल कर देता। बादशाह खामोश हो गया। दरवेश ने कहा, इसलिए सबसे अहम वक्त वो लम्हा था जब तुम मेरी मदद कर रहे थे। बादशाह गौर से सुनने लगा। दरवेश ने कहा, और उस वक्त सबसे अहम इंसान मैं था, क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे थे। बादशाह के चेहरे पर हैरत थी। दरवेश ने कहा, फिर जब वो जख्मी आदमी आया तो सबसे अहम इंसान वो बन गया, क्योंकि तुम उसकी जान बचा रहे थे। बादशाह पूरी तवज्जो से सुन रहा था, मगर अभी एक सवाल बाकी था, सबसे अहम काम कौन सा है? और अब दरवेश वो राज बताने वाला था जो बादशाह की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह की नरम रोशनी पहाड़ों पर फैल रही थी। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह सिकंदर शाह दरवेश के सामने बैठा था। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर मेरे 3 सवालों का असल जवाब क्या है? दरवेश ने खामोशी से जमीन की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोलना शुरू किया। बादशाह सिकंदर शाह, दुनिया के अक्सर लोग सारी जिंदगी इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करते रहते हैं, मगर उन्हें कभी सही जवाब नहीं मिलता। बादशाह पूरी तवज्जो से सुन रहा था। दरवेश ने कहा, तुम कल यहाँ आए थे और तुमने मुझसे सवाल किया था, मगर मैंने फौरन जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं फौरन बता देता तो तुम उसे समझ ना पाते। बादशाह ने सर हिलाया। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कभी कभी जिंदगी हमें जवाब लफ्ज़ों में नहीं बल्कि वाक़यात के ज़रिए देती है। बादशाह हैरान हो गया। दरवेश ने कहा, कल जो कुछ हुआ वही तुम्हारे सवालों का जवाब है। बादशाह ने बेसब्री से कहा, बाबा जी, बराह करम साफ साफ बताएं। दरवेश मुस्कुराया और फिर उसने पहला जवाब दिया। तुम्हारा पहला सवाल था, सबसे अहम वक्त कौन सा होता है? दरवेश ने कहा, सबसे अहम वक्त मौजूदा लम्हा होता है। बादशाह ने हैरत से पूछा, मौजूदा लम्हा? दरवेश ने सर हिलाया। हाँ, क्योंकि यही वो वक्त है जो हमारे इख्तियार में होता है। न माजी हमारे हाथ में है और ना मुस्तकबिल। वो बोला, कल जब तुम मेरे साथ जमीन खोद रहे थे वही सबसे अहम वक्त था, क्योंकि अगर तुम वो काम ना करते तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें कत्ल कर देता। बादशाह खामोश हो गया। उसे एहसास होने लगा कि दरवेश सच कह रहा है। दरवेश ने कहा, लोग हमेशा माजी पर अफसोस करते रहते हैं या मुस्तकबिल की फिक्र में मुब्तला रहते हैं, मगर वो मौजूदा लम्हा खो देते हैं। फिर दरवेश ने दूसरा जवाब दिया। तुम्हारा दूसरा सवाल था, सबसे अहम इंसान कौन होता है? दरवेश ने कहा, सबसे अहम इंसान वो होता है जो इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हो। बादशाह हैरान रह गया। दरवेश ने वजाहत की, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अगले लम्हे तुम किससे मिलोगे। वो बोला, कल पहले मैं तुम्हारे सामने था, इसीलिए मैं सबसे अहम इंसान था, और जब वो जख्मी आदमी आया तो वो सबसे अहम इंसान बन गया, क्योंकि उस वक्त उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसके दिल में अजीब सुकून उतरने लगा, मगर अभी आखिरी सवाल बाकी था, सबसे अहम काम कौन सा है? बादशाह ने बेसब्री से पूछा। दरवेश मुस्कुराया और बोला, तीसरा सवाल सबसे अहम है। बादशाह आगे झुक गया। दरवेश ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, सबसे अहम काम नेकी करना और दूसरों की मदद करना है। बादशाह की आंखों में हैरत थी। दरवेश ने कहा, क्योंकि इंसान को इस दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा गया है। फिर उसने कल के वाक़ये की तरफ इशारा किया।
अगर तुमने उस जख्मी आदमी की मदद ना की होती तो वो मर जाता। वो रुका और बोला, और शायद तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए नफरत रह जाती। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, यह सच है। दरवेश ने कहा, लेकिन तुमने उसकी मदद की और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन गया। बादशाह के दिल में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसे एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी गलत चीजों के पीछे भागता रहा था, दौलत, ताकत और जंगें, मगर असल हकीकत कुछ और ही थी। दरवेश ने कहा, याद रखो बादशाह, अगर तुम हमेशा मौजूदा लम्हे की कदर करोगे और अपने सामने वाले इंसान के साथ भलाई करोगे तो तुम कभी गलत फैसला नहीं करोगे। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने दरवेश के हाथ थाम लिए। बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। इसी वक्त झोंपड़ी के अंदर से आवाज आई। वो जख्मी आदमी जाग चुका था। वो बाहर आया और बादशाह के सामने झुक गया। बादशाह सलामत, मैंने अपने कबीले को खबर भेज दी है, अब हम आपके दुश्मन नहीं रहेंगे। बादशाह हैरान रह गया। सिर्फ एक रात में उसका दुश्मन उसका दोस्त बन गया था, मगर उसे ये मालूम ना था कि जब वो वापस अपनी सल्तनत में जाएगा तो एक और हैरानकुन वाकया उसका इंतजार कर रहा होगा। ऐसा वाकया जो पूरे मुल्क की तकदीर बदल देगा। बादशाह सलामत, क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए? बादशाह मुस्कुराया, हाँ, मुझे अपने जवाब मिल गए हैं। फिर उसने पूरे दरबार को दरवेश की बातें सुनाई। पहले तो दरबारी खामोश रहे, फिर एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर हम वाकई इन उसूलों पर अमल करें तो हमारी सल्तनत दुनिया की बेहतरीन सल्तनत बन सकती है। बादशाह ने फौरन फैसला कर लिया। उसी दिन उसने सल्तनत में नए कवानीन नाफिज किए। उसने हुक्म दिया, आज से हमारी सल्तनत में सबसे पहले इंसानियत को अहमियत दी जाएगी। उसने कैदियों के साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया, गरीबों के लिए खजाने खोल दिए, बीमारों के लिए शफाखाने बनवाए, और सबसे अहम बात, वो खुद भी लोगों के दरमियान जाने लगा। अब वो सिर्फ तख्त पर बैठकर फैसले नहीं करता था, वो गांव-गांव जाता, लोगों की बातें सुनता और उनकी मदद करता। लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा बादशाह नहीं देखा था। आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत बदलने लगी। गरीब खुशहाल होने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और दुश्मन कबाइल भी बादशाह के दोस्त बन गए। कई साल बाद एक दिन बादशाह सिकंदर शाह महल की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। वही चांद चमक रहा था जिस रात उसके दिल में 3 सवाल पैदा हुए थे, मगर आज उसके दिल में बेचैनी नहीं थी। आज उसके दिल में सुकून था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, जिंदगी का राज बहुत सादा था, मगर मैंने इसे समझने में बहुत देर कर दी। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सच समझने की तौफीक दी। और उस दिन के बाद बादशाह सिकंदर शाह सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान नहीं रहा, वो एक आदिल और मेहरबान बादशाह के तौर पर मशहूर हो गया। लोग सदियों बाद भी उसकी कहानी सुनाते थे और हमेशा यही कहते थे, दुनिया में 3 चीजें सबसे अहम हैं। सबसे अहम वक्त मौजूदा लम्हा, सबसे अहम इंसान वो जो इस वक्त तुम्हारे सामने हो, और सबसे अहम काम उसके साथ भलाई करना। और यही 3 बातें एक बादशाह की पूरी जिंदगी बदल गईं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए? तो आज से इन 3 बातों को कभी मत भूलना। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा। और ऐसी ही सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल सच्ची कहानी विद रिज़ी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।